Hi friends, welcome on Yourpedia, and as you know, Yourpedia is providing you the best learning content and best learning platform for engineering services paper 1 preliminary. So this is a general engineering and aptitude paper, and many students fear this paper, though there is nothing to fear. If you have good strategy, if you have good content, and if you have a focused preparation, you can score really good in this particular paper. So there are 10 topics in engineering services paper 1. And as you know, when it was introduced first time 2017, Yourpedia offered you the best learning content for that. So over the period we kept on improving upon the content, but in between we did not focus much on this particular paper, and recently it was relaunched with all updations, and now this is the best available platform and learning material for you in case you are looking for engineering services exam and you want to score really good in paper 1. You can go ahead with Yourpedia. Now this particular lecture is about energy and environment paper of 2021. So mentors of Yourpedia are covering the previous year's papers of engineering services preliminary paper 1, and they are covering it in different topic wise different topics like general studies and engineering aptitude of engineering services paper 1 has these 10 topics. So my today's lecture is about basics of engineering and environment, and I am covering it for year 2021. So year 2021 earlier has already been covered, and videos are already available, so you people can see those videos and you can understand what kind of questions are asked. And I find this energy and environment quite simple, straightforward topic for engineering services, though some question will be ticklish. So normally the questions number of the questions vary in and around, average out, if I average it out, it is 9 to 10 questions, but in some years the number can be 13, or in some years number can be 6. 2021 mein 6 questions were asked from energy and environment. Out of all 100 questions, 6 questions only were asked from this topic. But that does not mean this the weightage of this topic is less or so. Only thing is you need to revise it, because you never know how many questions can be asked in particular year. So start करते हैं. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसका हेड ऑफिस नैरोबी केनिया में है. Which of the following are major components of air pollution? So friends, एयर पोल्यूशन में कुछ गैसेज हैं. एयर पोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया गया है और कौन कौन सी गैसेज मिलके एयर पोल्यूशन बनाती हैं, that you should know. But here I just want to tell you, when we talk about oxygen, nitrogen, carbon dioxide and all, they are the components of air. When there was no pollution in air, that time also oxygen, nitrogen, carbon dioxide उसका component थे. So pollution means excess of particular gas in air or contaminant in particular air, or some particulate matters like smoke or dust that makes the air polluting. Pollution is means that. तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इज ऑक्सीजन अ गैस पोल्यूटिंग एयर? नो. नाइट्रोजन? नो. कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नो. व्हाई? बिकॉज जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एक बढ़ जाएगा तब वो ग्रीन हाउस गैस बन जाती है. दैट इज द ओनली थिंग. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस. इट इज नॉट अ पोल्यूटेंट, बट समवेयर इट इज मेंशन्ड. सो आपको ये 4 चॉइस दे रखा था, SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2. इनमें से कौन सी ऐसी है जो मेजर पोल्यूटेंट है, कंपोनेंट है एयर पोल्यूशन का? सो ऑल दीज आर कंपोनेंट ऑफ पोल्यूशन. पहले तो पोल्यूशन का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. अनडिजायरेबल चेंज इन द सराउंडिंग विच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल इज कॉल्ड पोल्यूशन. सो पोल्यूटेंट जो है दैट कंटेमिनेट्स द एयर, और उसको एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं. तो जब भी कोई कंपोनेंट एयर को पोल्यूट कर दे, कंटेमिनेंट, तो उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं. दैट पोल्यूट्स एयर. अब पोल्यूटेंट जो है वो कई तरह से आ सकते हैं. देयर कैन बी नेचुरल सोर्स, देयर कैन बी मैन मेड सोर्स. एयर पोल्यूशन कैन बी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. व्हाट आर द सोर्सेज? स्मोक, डस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स वो नेचुरल फिनोमिनास हैं. तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा, फॉरेस्ट फायर होगा, तब आपके स्मोक, डस्ट पार्टिकल वगैरह उठेंगे, निकलेंगे. दैट इज ऑल्सो पोल्यूशन, राइट? और इट कैन बी बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? पावर प्लांट,
फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट, बर्निंग ऑफ द फायरवुड, डंग केक्स, या जैसे स्टबल बर्निंग होता है पंजाब में, आप जानते हैं इन द फार्म वो स्टबल बर्निंग करते हैं, तो ये मैन मेड एक्टिविटीज। सो इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी मैन मेड। सो कंटेमिनेंट को एयर पोल्यूशन बोलते हैं। और कौन कौन सी मेजर गैसेस होती हैं, गैस एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, आपको ये याद रखना है। इट कैन बी SOx, इट कैन बी NOx। इसको SOx NOx बोलते हैं, you know this is called SOx NOx. so these two things are called SOx and NOx, और SOx NOx ही एसिड रेन बनाते हैं, बिकॉज एसिड रेन HNO3 एंड H2SO4 ये दोनों गैस, जो दोनों एसिड्स हैं, ये आपका एसिड रेन वाटर के साथ मिलके NOx एंड SOx एसिड रेन बनाता है, और वो इवेंचुअली एक पॉल्यूशन का कारण भी है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का है। जब फायर को आप बर्न कर रहे हो, जब व्हेन यू आर बर्निंग द फॉसिल फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग आउट ऑफ दैट। when you are burning fossil fuel, carbon dioxide comes out of that. So how carbon dioxide is coming and in what content, in what quantity it is coming, उसके बेस पे कार्बन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है भी और पोल्यूटेंट नहीं भी है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सारे के सारे पोल्यूटेंट हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर PM, और जैसे स्मोक है दैट इज PM 2.5। अगर मैं डस्ट पार्टिकल की बात करूं दैट इज PM 10, दैट मीन्स 10 माइक्रोन मीटर इज द डायमीटर। सो ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन, you know ozone is good ozone, bad ozone. Good ozone in troposphere, ground level, earth surface, that is a bad ozone. Good ozone is in stratosphere, that is after troposphere comes stratosphere. Stratosphere 10 to 50 किलोमीटर के बीच में होता है, and very lower stratosphere में ओजोन होती है, और वो ओजोन हमें सेव करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन से, दैट इज अ गुड ओजोन। सो इट इज बैड ओजोन जो ग्राउंड लेवल ओजोन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये एयर पोल्यूटेंट है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का नाम उसने नहीं लिया, बिकॉज एग्जाम में अगर आएगा तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर चॉइस हो तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर में डस्ट, मिस्ट, फ्यूम, स्मोक, स्मॉग सब आता है। और जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है वो मेन कंपोनेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, तो ये पोल्यूटेंट नहीं होते। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी पोल्यूटेंट नहीं बोलता। तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पोल्यूटेंट नहीं है, वो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट कोल। अब कोल की कैटेगरीज हैं, कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं कोल की, इनमें से कौन सा सॉफ्ट कोल है। तो कोल की कैटेगरीज क्या हैं, 4 मेजर टाइप्स ऑफ कोल है। एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है। बिटुमिनस के भी 2 कैटेगरीज हैं, बिटुमिनस के 2 कैटेगरीज हैं उसके, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, और उसमें सब बिटुमिनस एक और कैटेगरी है, और उसके बाद आपका लिग्नाइट है। एंथ्रासाइट जो है वो हार्ड कोल होता है, इसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी गुड। एंथ्रासाइट इज अ गुड क्वालिटी कोल। एश कंटेंट, volatile content is less, and hard carbon is more, and hence calorific value is more. So less pollution by anthracite, लेकिन मिलता नहीं है तो उसको हार्ड कोल बोलते हैं एंथ्रासाइट को। सो वोलेटाइल मैटर उसमें कम होता है और हाई परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन होती है, और वो हार्ड कोल होता है। ब्यूटुमिनस को सॉफ्ट कोल बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है। जितने भी पावर प्लांट इंडिया में चलते हैं, अगर आप देखोगे कौन से कोल से ज्यादा चलते हैं, फी आस्क यू कैन से बिटुमिनस के साथ चलते हैं। उसमें आपका जो वोलेटाइल कंटेंट है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू एंथ्रासाइट। एंड ये आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट हैं, कोक प्रोडक्शन है, उसमें बिटुमिनस यूज़ होता है। सब बिटुमिनस जो है वो काले रंग का कोल होता है और शाइनी नहीं होता, और इसकी हीटिंग वैल्यू भी मॉडरेट होती है, और इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। लिग्नाइट, ब्राउन कोल को लिग्नाइट बोलते हैं, और ये लोएस्ट ग्रेड होता है, इसमें कंसंट्रेशन कार्बन सबसे कम होती है, और इसकी हीटिंग वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू भी इसके कम होती है। मॉइस्चर कंटेंट इसका ज़्यादा होता है, और इसको भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट सबको यूज़ किया जा सकता है। ओनली थिंग इज एंथ्रासाइट इज कॉस्टली बिकॉज उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, हीट कंटेंट उसका ज़्यादा है। सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड नो इज दैट सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जो मिलता है अबंडेंट
there are gases also, there are oil also, there is coal also, but coal सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। इंडिया में कोल कहाँ मिलता है? रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड के अंदर कोल माइंस हैं और वहाँ पे आपका कोयला इंडिया में मिलता है। और बाकी वर्ल्ड में जो कोल प्रोड्यूसर है वो चाइना, यूएस, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज तो हैं ही, फ्रांस वगैरह कंट्रीज इसमें हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी में से फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू अल्फा रिचनेस, बीटा रिचनेस, गामा रिचनेस, पॉइंट रिचनेस, और इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो पॉइंट रिचनेस, नंबर ऑफ स्पीशीज दैट कैन बी फाउंड एट अ सिंगल पॉइंट इन अ गिवन स्पेस। नाम से ठीक लग रहा है, पॉइंट रिचनेस, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी बायोडाइवर्सिटी है। रिचनेस हियर मींस डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज, डाइवर्सिटी इन द स्पीशीज, दैट इज रिचनेस। अल्फा रिचनेस, नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ स्मॉल हिट्रोजिनस एरिया। वो हिट्रोजिनस एरिया नहीं होता, वो होमोजिनस एरिया होता है। एक एरिया में कितने स्पीशीज हैं। हिट्रोजिनस मींस अलग अलग, होमोजिनस मींस एक टाइप का एरिया। तो होमोजिनस एरिया में कितने टाइप के स्पीशीज हैं वो आपका अल्फा रिचनेस है। बीटा रिचनेस मींस डिफरेंट हैबिटेट्स, अगर हम अलग अलग हैबिटेट्स को ले लें तो कैसे चेंज उसमें आएगा। और गामा मींस बहुत बड़ा लैंडस्केप एरिया है तो उसमें कैसे चेंज आएगा। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं अभी। अल्फा, बीटा, गामा रिचनेस क्या है। अल्फा रिचनेस इज नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन स्मॉल होमोजेनस एरिया। अलग अलग टाइप की स्पीशीज उस एरिया में कितनी हैं जो डाइवर्सिटी को उस लोकल स्केल पे, लोकल एरिया की डाइवर्सिटी को कैप्चर करता है। और ये वहाँ पे अल्फ़ा जो है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया, रीजनल इकोलॉजिकल यूनिट में, जैसे को पॉन्ड हो गया या फॉरेस्ट हो गया या फील्ड हो गया, उस पर्टिकुलर एरिया में किस अलग अलग टाइप की कौन कौन सी डाइवर्सिटी है उसको कैप्चर करता है। एंड इसको कैसे हम कैटेगराइज करते हैं पॉइंट रिचनेस को। नंबर ऑफ स्पीशीज जो एक पॉइंट पे हैं, अल्फा जो एक पर्टिकुलर एरिया में है, बीटा जो डिफरेंट हैबिटेट्स में शिफ्ट करने से होता है, और गामा जो लार्ज लैंडस्केप पे है। ये डायग्राम सब एक्सप्लेन कर देगा, ये डायग्राम ध्यान से देखना। अल्फा मींस एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन को हमने अल्फा बोल दिया। एक रीजन से दूसरे रीजन के बीच में अगर शिफ्टिंग हो रहा है तो बीटा है। देखो बीटा में कैसे वो शिफ्ट होगा। और अगर पूरे सारे एरिया को ले लिया जाए तो गामा है, जिसके अंदर अलग अलग हैबिटेट्स सारे के सारे आ जाएंगे। तो अल्फा होता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द सेम कम्युनिटी और हैबिटेट। एक ही कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, कॉम्बिनेशन जो होता है स्पीशीज का, वो बेसिकली डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है एक ही हैबिटेट में। एक कम्युनिटी, एक हैबिटेट के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो अल्फा। बीटा मींस आपने क्या कर दिया, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के बीच में जब आप शिफ्ट करोगे तो कितनी डाइवर्सिटी है बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। So diversity among different communities, species frequently change when habitat और community change। जब habitat change होगा, community change होगी तो diversity change होगी। और तीसरे में गामा डाइवर्सिटी, और गामा डाइवर्सिटी मीन्स पूरे जोग्राफिकल एरिया का हमें देखना है कि जब हम एक पूरा जोग्राफिकल एरिया लेते हैं तो उसमें डाइवर्सिटी कितनी है। दैट इज हाउ यू सी दैट। ओके, नेक्स्ट इज एनर्जी सर्विस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू व्हाट। अब इसमें से एक दो क्वेश्चन साहिल भी करवाएंगे आपको। इन 6 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन जो सिविल इंजीनियरिंग मेंटर का जो पर्सपेक्टिव है, ही विल आल्सो ऐड इनटू दैट, सो यू विल गेट सम आइडिया फ्रॉम देयर आल्सो। एनर्जी सर्विसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू व्हाट। मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में एलिमिनेशन कैन बी अ वेरी गुड वे टू फाइंड आउट द राइट आंसर। Through elimination you can find the right answer. So in elimination you can see, you can eliminate here some of the choices. All the 4 choices is not there. So energy service for sustainable development, अगर हमें किसी चीज से लिंक करनी है, sustainable development, that means, now what is the meaning of sustainable development? It means you are using the resources for your own purpose and without compromising the requirement of future generation. You are using the resources, natural resources, without compromising the opportunities of the future generation, उनको भी मिल जाए। तो अगर आपको पॉवर्टी से बेसिकली बाहर निकलना है तो आपको रिसोर्स यूटिलाइज करना पड़ेगा। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया में पॉवर्टी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो लोग अपने सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं। तो जब वो यूज़ करें तो बेसिकली वो सस्टेनेबल वे में यूज़ करें। जैसे फूड प्रिपेयर करने के लिए, फूड बनाने के लिए आप
फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं, अगर आप एफिशिएंटली यूज़ करेंगे तो आपका पोल्यूशन नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। अगर इनएफिशिएंटली करेंगे, सस्टेनेबल नहीं है, तो पॉवर्टी लिंक्ड है इसके साथ। लाइफस्टाइल के साथ बिल्कुल लिंक है। हम जानते हैं पर कैपिटा कार्बन कंजम्पशन जो है वो यूएस वगैरह में बहुत ज़्यादा है, इंडिया से कहीं ज़्यादा। तो वो लाइफस्टाइल के लिए यूज़ करते हैं। आपका घर है, आपने सेंट्रली एयर कंडीशन रखना है, सेंट्रल हीटिंग रखना है, वो लाइफस्टाइल है आपका। डिफॉरेस्टेशन के साथ बिल्कुल लिंक है। एनर्जी सर्विस डिफॉरेस्टेशन का लिंक्ड है। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे वो सस्टेनेबल नहीं है, अगर आप लाइफस्टाइल में मिसयूज करोगे सस्टेनेबल नहीं है। अब वुमेन एक ऐसा फैक्टर है जो एनर्जी सर्विस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है। ऑब्वियसली जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी सस्टेनेबिलिटी का पार्ट होता है, लेकिन वुमेन का यूज वुमेन का एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है। वुमेन मैन वो ह्यूमन बीइंग में आता है, वो उनके दोनों के लिए वो बेसिकली सेम चीज़ है, लेकिन ये तीनों का एनर्जी कंजम्पशन के साथ रिलेशन है। तो सस्टेनेबल एनर्जी क्या होता है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है ये भी आप जानते हैं। उसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कई ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। अब इसको आप मैच करें, ये कॉलम 1 कॉलम 2 आपको दे रखा है। अलग अलग टाइप की लेक्स हैं। ओलिगोट्रॉफिक लेक क्या है, डिस्ट्रॉफिक लेक क्या है, मेरोमिक्टिक लेक क्या है, इम्पाउंडमेंट्स क्या है, ये अलग अलग चॉइस उसको मैच करना है। तो साहिल इसके ऊपर आपको पूरा वीडियो बनाएंगे, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे ये अलग अलग लेक्स क्या हैं और इनका क्या मीनिंग है। राइट, सो ओलिगोट्रॉफिक लेक जो है, अगर मैं बहुत शॉर्टली आपको बताऊं तो ये एक ऐसी लेक है जिसमें लो न्यूट्रिएंट होते हैं और इसका लो प्रोडक्टिविटी होती है। इसमें एल्गी प्रोडक्शन भी कम होता है और इसलिए क्लियर वाटर होता है इसका और ड्रिंकेबल वाटर होता है, इसको पी सकते हैं, साफ पानी, पीने वाला पानी। एल्गी लो तो प्रोडक्शन भी इसमें कम होता है। He is explaining other kind of lakes also. But as I told you friends, Sahil is going to discuss in detail about this particular topic, about the types of lakes and all. Oligotrophic lake, इस तरीके के ट्रीज होते हैं यहाँ पे, क्लियर ब्लू वाटर होता है। Okay, so last question of 2021 engineering exercise paper 1 energy and environment. Which of the following is not included in 27 principles जो इशू किए गए थे रियो डी जेनेरो 92 कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। देखो रियो डी जेनेरो में एक अर्थ समिट हुई थी 1991-92 में, और दिस अर्थ समिट वाज लाइक फर्स्ट टाइम व्हेन द लीडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, आई थिंक 190 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की पार्टिसिपेट किया था, और वो लीडर्स केम टुगेदर एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द climate change, global warming, that earth is in the danger because of this problem which is global warming या climate change। तो फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से, कार्बन डाइऑक्साइड के बर्न करने से अर्थ के ऊपर क्लाइमेट चेंज आ रहा है और वो क्लाइमेट चेंज विल नॉट बी सस्टेनेबल। सो उसके बाद बहुत सा डिस्कशन हुआ अर्थ समिट के बाद, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्रिएट किया गया, और उसी फ्रेमवर्क के अंडर अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह 97 में उसके बाद निकल के आया। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद दोहा राउंड डिस्कशन हुआ, और दोहा राउंड के बाद पेरिस एग्रीमेंट हुआ। सो वी आर प्रोसीडिंग अहेड विद दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस एंड दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो 27 प्रिंसिपल्स इशू हुए थे, उनमें से कौन सा प्रिंसिपल इसमें नहीं है ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो फ्रेंड्स, यू शुड नो व्हाट दीज 27 प्रिंसिपल्स वर in which were discussed at that particular time in Rio de Janeiro. Role of humans, state sovereignty, just go through once, क्योंकि ऐसा डाटा ओरिएंटेड क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने पूछ लिया था क्वेश्चन। तो राइट टू सेफ्टी फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर,
देखो मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में एलिमिनेशन कैन बी अ वेरी गुड टूल टू एलिमिनेट द चॉइस एंड हिट द राइट आंसर। तो उसी में एक ये जो आपने लिखा है राइट टू सेफ्टी फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, इस राइट को दिया नहीं जा सकता। राइट टू सेफ्टी फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर नहीं दिया जा सकता, बिकॉज नेचुरल डिजास्टर अगर हो रहा है तो आप उससे किस तरीके से आपको गवर्नमेंट राइट देगी, बिकॉज ऑब्वियसली नेचुरल डिजास्टर को हमें रोकना है। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर डेवलप करेंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का, तो आप बोलोगे हाँ हमें जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है वो ह्यूमन बीइंग ही क्रिएट करता है, तो वो उससे प्रोटेक्शन हमें एनवायरनमेंट को करनी चाहिए। यूथ मोबिलाइजेशन ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे हाथ में है, ये भी हमारे हाथ में है। तो ये तीनों चीजें ए सी डी समथिंग विच वी हैव कंट्रोल, वी कैन डू इट, but natural disaster is something which is not in our control. Before climate change started, then also there used to be natural disaster, and even today there are natural disaster. So safety of the human being can be, we can focus on that, we can think of doing that, but right to safety बहुत ज़्यादा provide करवा देना natural disaster से, that can be troublesome. It may or it may not be provided. That is how we have to see it. तो ये हैं वो सारे के सारे 27 फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर लेना। ये सारे ऑब्जेक्टिव, ये गोल्स, ये हमने डिस्कस किए थे रियो डी जेनेरो जब समिट हुआ था। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आज की डेट में, वो हम अलग बात करते हैं, लेकिन ये 27 वो पॉइंट्स थे जो हमने 27 प्रिंसिपल डिस्कस किए थे रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर। रियो डिक्लेरेशन जब हुआ था इसमें हमने 27 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। सो आई एम श्योर यू विल गो थ्रू दिस, और ये आप अपना रिवीजन करना स्टार्ट करो फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया पेपर 1 ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ प्रेटी सिंपल पेपर। अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करोगे, कंटेंट अच्छा फोकस करोगे, तो इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, सो प्रिपेयर ऑन दैट एंड आई एम वेरी श्योर आप अच्छा स्कोर इसमें से कर सकते हैं। कीप वॉचिंग योरपीडिया एंड कीप वॉचिंग द डेडिकेटेड एनवायरनमेंट यूट्यूब चैनल ऑफ योरपीडिया, which actually mention about various aspects of environment science. Thank you. Hello, hi everyone. I'm Dr. Sahil Moore. So today I will be presenting energy and environment questions that appeared in Indian Engineering Services in year 2021. So let's start with the first question. Question number 1 states that which of the following is a soft coal? आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से पूछा है सॉफ्ट कोल कौन सा है। ओके, हम क्वेश्चन का आंसर करने से पहले पहले समझेंगे कि जो चारों टाइप्स हैं ऑप्शंस में होते क्या हैं ये, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, हम पहले सभी प्रॉपर्टीज को समझेंगे अच्छे से, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो कोल क्या है? कोल एक कंबस्टिबल मटेरियल है, ठीक है, जो अपीयरेंस में ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, कंबस्टिबल सेडिमेंट्री रॉक विच इज ब्लैक और ब्लैक ब्राउन इन कलर। ठीक है, कोल आपका एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल क्यों है? क्योंकि इसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने के लिए। ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग रहे हैं इसको बनने के लिए, तो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। अब आपके कोल बनता कैसे है? ठीक है, कोल बेसिकली जब भी आपकी जो एनर्जी स्टोर होती है प्लांट्स में, जो एनर्जी स्टोर होती है प्लांट्स में, ठीक है, जो काफी मिलियन से पहले जो डिके हो गए अर्थ के अंदर, मिलियन ऑफ ईयर्स पहले वो डिके हो गए हैं और उसको कवरिंग हो गई है बाय लेयर्स ऑफ डर्ट एंड रॉक। ओके, तो उससे क्या हो रहा है, जो भी रिजल्टिंग प्रेशर है, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स तक वो हमारे बीनीथ द अर्थ रहा है और रिजल्टिंग प्रेशर से वो फिर एक कोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रिजल्टिंग प्रेशर एंड हीट से। ठीक है, तो मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको बनने के लिए। मेनली इसके अंदर आपका कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ओके, तो अब कोल आपके कितने टाइप्स के होते हैं? कोल को बेसिकली आपके एनर्जी कंटेंट के बेसिस पे हम डिफरेंट रैंकिंग्स में मान सकते हैं। 2 चीज़ें हम इसमें कंसिडर करेंगे। फर्स्ट, हीटिंग वैल्यू क्या है उसकी, और उसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना प्रेजेंट है। ओके, कोल के अंदर कितना कार्बन कंटेंट है और उसकी हीटिंग वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस पे हम कोल की रैंकिंग करते हैं। तो इसमें 4 टाइप के होते हैं हमारे। फर्स्ट होएगा आपका
एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट रैंकिंग हो गया 1, ठीक है। सेकंड आएगा आपका बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस। थर्ड आएगा आपका लिग्नाइट, एंड लास्ट वन इज पीट। ये मैंने आपको 1 से 4 तक ना रैंकिंग बताई है, किसकी बेसिस से बताई है कि इनके अंदर कितना कार्बन कंटेंट है, ठीक है, और इनकी हीटिंग वैल्यू क्या है। तो नंबर 1 पे रहेगा आपका एंथ्रासाइट, और लास्ट रैंकिंग दी हमने पीट को, ठीक है। तो अब समझते हैं किसमें कितना कार्बन कंटेंट है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। तो स्टार्टिंग विद एंथ्रासाइट कोल, ठीक है। ये शाइनी ब्लैक है कलर में, अपीयरेंस में, हार्ड और ब्रिटल है ये, ठीक है, हार्ड एंड ब्रिटल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सॉफ्ट कौन सा है, तो आपका एंथ्रासाइट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये हार्ड है और इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। जितने भी आपके चारों हैं उनमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट किस में होगा, आपके एंथ्रासाइट में, विच इज अराउंड 86 to 97%, ठीक है। और इसकी हीटिंग वैल्यू हाईएस्ट है, बट इसके अंदर वोलेटाइल मैटर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इट हैज वेरी लो वोलेटाइल मैटर। मतलब ये ज्यादातर आपका लिक्विड या सॉलिड स्टेट में, मतलब अगर वो वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज अपनी लिक्विड या सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, अच्छी जल्दी से वेपराइज नहीं हो पा रही है, तो इसके अंदर वोलेटाइल मैटर कम है, 2 से 12% है सिर्फ। तो इसकी वजह से क्या होगा, कंबशन स्लो होगी, ठीक है, कंबशन स्लो रहेगी इसकी। फिर तो इसकी कंबशन स्लो रहेगी, तो इसलिए हम इसको एंथ्रासाइट को ज्यादातर डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा हम जो बिटुमिनस है उसको यूज करते हैं एज कंपेयर टू दिस, ओके। नंबर सेकंड इज बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल आपका ब्लैक कोल होता है, ठीक है। इसकी कार्बन कंटेंट आपके एंथ्रासाइट से कम रहेगी, पर इसकी वोलेटाइल जो इसके अंदर वोलेटाइल मैटर है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। वोलेटाइल मैटर ज्यादा रहेगा यानी कि जल्दी से कंबस्ट हो सकता है ये, ओके। तो इसकी यूज ज्यादा है एज कंपेयर टू एंथ्रासाइट, ठीक है। तो इसका जो मेन है, इट इज सॉफ्ट कोल, ओके। बिटुमिनस इज अ सॉफ्ट कोल एंड इट कंटेन्स 45 to 86% कार्बन, ठीक है। काफी कार्बन है बट एंथ्रासाइट से कम है। इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट और वोलेटाइल कंटेंट कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया। किससे कम है, लिग्नाइट कोल से, जो आपकी 3rd रैंक आती है, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम 5 to 45%। दे आर इजिली कंबस्टेड व्हेन pulverized as powder due to their high heating value and high volatile content, ठीक है। जब इनको हम पाउडर के फॉर्म में इनको पल्वराइज कर देते हैं तो ये आसानी से हीट हो जाते हैं, मतलब आसानी से कंबस्टेबल है ये, ओके। एंड दे हैव वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे है, दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कोक एंड गैस। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किस चीज के प्रोडक्शन में यूज होता है ये, कोक एंड गैस की प्रोडक्शन के अंदर किसको यूज करते हैं हम, बिटुमिनस को, ठीक है। 3rd रैंकिंग किसको दिया हमने, लिग्नाइट को, ठीक है। इसके अंदर हमारा 25 से लेकर 35% तक कोल रहता है, ओके। 25 to 35% कोल एंड हैज लोवेस्ट एनर्जी कंटेंट ऑफ ऑल कोल रैंक्स। जितने भी आपने कोल पढ़े हैं अभी टाइप्स के, सबसे ज्यादा कम इसके अंदर एनर्जी कंटेंट होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में कि इनमें से बताओ सबसे लोएस्ट रैंक किसकी है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंटेंट, तो क्या रहेगा उसका आंसर, लिग्नाइट, ठीक है। Lignite coal deposits tend to be relatively young and were not subjected to extreme heat or pressure. इसका मतलब समझो, जैसे मैंने बताया कोल काफी मिलियन ईयर्स के डिके प्लांट के बाद बनता है, ठीक है, जब उन पे एक्सट्रीम हीट और प्रेशर बनता है। पर लिग्नाइट वो होते हैं जो यंग होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ज्यादा हीट और प्रेशर नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो वो कौन से लिग्नाइट होंगे, वो हमारे जिनके ऊपर ज्यादा हीट एंड प्रेशर नहीं होता है, वर नॉट सब्जेक्टेड, क्लियर है।
इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट होता है 75%। आपसे ये एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट किस में है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट तो एंथ्रासाइट में है, पर हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट किसमें, लिग्नाइट के अंदर है। इसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है। क्लियर है। फोर्थ है हमारा टाइप जो लास्ट है इसका, विच इज पीट। ठीक है, पीट एक एसेंशियली हम इसको कॉल नहीं कहते हैं, ये एक फर्स्ट स्टेज है हमारी डिकम्पोजिशन की। ठीक है, क्या है ये, फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो किस वजह से हो रही है, जब आपके पार्शियली डिके हो रहा है ना, वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मैटर जो पार्शियल डिके होता है तब बनता है हमारा पीट। ठीक है, ये हमारा जो पीट लाइन्स में है उसके लिए एक यूनिक है। ठीक है, क्यों यूनिक है ये जो भी हमारा कार्बन सिंक है सबसे ज़्यादा पीट हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट कार्बन सिंक ऑन द प्लैनेट, तो इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टी किसकी है, पीट लैंड्स की, जो भी आपके कार्बन सिंक को हेल्प करते हैं। ठीक है, कार्बन सिंक मतलब हम कार्बन हमारा अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो रही है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी ह्यूमन के द्वारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के थ्रू कार्बन इमिट हो रहा है, इट गेट ऑब्जॉर्व्ड। तो कौन हेल्प कर रहा है, पीटलैंड्स। ओके, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कंटेन्स लेस देन 40 to 55% कार्बन। ठीक है, इसमें कार्बन की क्वांटिटी सबसे कम है। सबसे ज्यादा कार्बन की क्वांटिटी किसमें थी, एंथ्रासाइट में। सबसे लोवेस्ट किसमें, अब पीट में। ठीक है, तो पीट में कार्बन क्वांटिटी कम होने का मतलब क्या है कि इसकी रैंक लास्ट है, जिसमें कार्बन क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी रैंक फर्स्ट होगी, जो है एंथ्रासाइट। क्लियर है, ये मैंने आपको चारों बता दिया। अब इनके बेसिस से समझते हैं क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन में से पूछा था इनमें से कौन सा सॉफ्ट कॉल है, तो आप सोचो खुद, मैंने बताया आपको चारों डिटेल्स में क्या क्या है। ठीक है, मैग्नेटाइट कोई कोल का टाइप है ही नहीं। ओके, एंथ्रासाइट मैंने बताया हार्ड कोल है, तो बचा बिटुमिनस से लिग्नाइट में से। तो उसका करेक्ट आंसर होगा बिटुमिनस। बिटुमिनस इज अ सॉफ्ट कोल। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से ये बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है इन पेयर में से, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये आपसे रीजनल बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। 4 टर्म्स है। ठीक है, 4 टर्म्स है और इनकी रिलेटेड डेफिनेशन पूछी हुई है। तो पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर करने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए चारों होते क्या है। ठीक है, पॉइंट रिचनेस क्या होती है, अल्फा रिचनेस क्या होती है, बीटा रिचनेस क्या होती है, गामा रिचनेस क्या होती है। तो इट इज आस्किंग पॉइंट रिचनेस इज द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट कैन बी फाउंड एट अ सिंगल पॉइंट इन अ गिवन स्पेस। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे गिवन स्पेस पे जितनी भी नंबर ऑफ स्पीशीज है वो होती है हमारी पॉइंट रिचनेस। ये ठीक है, आपका करेक्टली मैच्ड है। आपका नेक्स्ट पूछ रहा है अल्फा रिचनेस। इट इज द नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ स्मॉल हेट्रोजीनियस एरिया। नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ हेट्रोजीनियस एरिया नहीं, आपकी अल्फा रिचनेस वो होगी जो होमोजीनियस एरिया में होती है। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब जिसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, जो भी वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी है उनकी जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टी सेम रहती है। होमोजीनियस नेचर होना। हेट्रोजीनियस का मतलब जो वेरी कर रही हैं चीज़ें। ठीक है, होमोजीनियस मतलब सिमिलर चीज़ें होती हैं जिनके बीच में सेम टाइप की स्पीशीज होना। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस नहीं होगा। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या हो रही है, इट टेल्स द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ गिवन कम्युनिटी
एंड डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज रिचनेस एंड इवननेस। ठीक है, मतलब उस जगह पे कितनी स्पीशीज की रिचनेस है, कितनी ज्यादा वहां पे स्पीशीज है, ठीक है, कितना वो रिच है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, और कितनी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्पीशीज रिचनेस एंड इवननेस, ये एक और प्रॉपर्टी आपकी अल्फा डाइवर्सिटी की। नेक्स्ट इज बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है? जब आपकी रेंज ऑफ कम्युनिटीज बनती है रिप्लेसमेंट से, ठीक है, जब आपकी रेंज ऑफ कम्युनिटीज, काफी सारी कम्युनिटीज बन गई हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स बन गए हैं, ठीक है, तो वो बन रही है हमारी फिर बीटा डाइवर्सिटी के अंदर। ठीक है, ये किस वजह से होगी? ये माइक्रो हैबिटेट्स की वजह से, ठीक है, उसके अंदर निशे की वजह से एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से। और निशे क्या होता है कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर रोल, ठीक है, वो निशे होता है। हर एक इन्वायरमेंट में, हर एक ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर रोल होता है, तो उसका निशे होता है। ठीक है, तो जब डिफरेंट हैबिटेट्स की बात हो रही है तो आपका क्या आएगा? बीटा डाइवर्सिटी। ओके, और गामा डाइवर्सिटी वो होती है जब आप हैबिटेट की बात कर रहे हो ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया की बात हो रही है तो आपकी क्या होगी? गामा डाइवर्सिटी। इट डिस्क्राइब्स डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर अ टोटल लैंडस्केप और ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो होगी बीटा डाइवर्सिटी। ये तीनों की डेफिनेशन हो गई है। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे बीटा रिचनेस क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन अक्रॉस डिफरेंट हैबिटेट्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया डिफरेंट हैबिटेट्स की वजह से। ठीक है, तो ये ठीक है, ये करेक्टली मैच्ड है, ये हमारा ठीक है। तो अगला पूछ रहा है गामा रिचनेस, द रेट ऑफ चेंज अक्रॉस लार्ज लैंडस्केप ग्रेडियंट्स। ठीक है, जब ग्रेडियंट आपका लार्ज है तो वो है गामा, तो ये भी ठीक है। तो बस हमारा जो इनकरेक्ट था अल्फा था। ओके, वो हेटेरोजेनस एरिया में नहीं होता, होमोजेनस एरिया में होता है। ठीक है, क्लियर? तो ध्यान से पढ़ने सारे ऑप्शंस क्या कह रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। हमें पूछा था विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली मैच्ड है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द फॉलोइंग। आपको 4 ऑप्शंस दिए, इनको करेक्टली मैच करना है, किसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू लेक्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेक्स के बारे में पूछा है और उनकी प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं, किसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसका आंसर करने से पहले हम पहले पढ़ेंगे ओलिगोट्रोफिक क्या होती है, डायस्ट्रोफिक क्या होती है, मैरोमिक्टिक लेक्स क्या होती हैं। ठीक है, उनको भी डिटेल में पढ़ते हैं। ओलिगोट्रोफिक लेक्स, ओलिगोट्रोफिक लेक्स वो होती है जिनकी कम प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, एक लेक होती है जिनकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, विच इज नोन एज यूट्रोफिक लेक्स। ओके, एंड ओलिगोट्रोफिक लेक्स होती है जिनकी काफी कम प्रोडक्टिविटी होती है। कम प्रोडक्टिविटी होने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे एल्गल ब्लूम्स ज्यादा उनकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, वहां पे इतनी सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं है कि उनकी ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो वहां पे एल्गल ग्रोथ ज्यादा ना होने की वजह से जो भी हमारी सनलाइट है वो हमारी डीपर जा सकती है लेक्स में। ठीक है, हमारी डीपर पेनिट्रेशन हो सकती है लाइट की, तो कौन सी होती है? ओलिगोट्रोफिक लेक्स होती है। दे हैव लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड द वाटर ऑफ सच अ लेक इज क्लियर इनफ। ओके, क्लियर होता है, बॉटम हमारा उसका विजिबल रहता है। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या रहेगी? जो भी आपका यूफोटिक जोन है वो एक्सटेंड करता है आपको हाइपोएल्यूमिनियम जोन में। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? कंसिडर करते हैं हम लेक। पहले ये सपोज करो आपकी एक लेक है। ओके, अब इसमें हमारे हाइपोएल्यूमिनियम जोन नीचे होता है, एल्यूमिनियम जोन ऊपर होता है। तो जो आपका ऊपर की तरफ है ये होता है आपका एल्यूमिनियम जोन, एल्यूमिनियम जोन। ओके, और जो बॉटम में है ये होता है आपका हाइपोएल्यूमिनियम जोन, हाइपोएल्यूमिनियम। ओके, टॉप पे हाइपोएल्यूमिनियम, नीचे एल्यूमिनियम, हाइपोएल्यूमिनियम,
ठीक है, तो ऊपर यानी कि सनरेज ज्यादा रहेंगी, ठीक है, तो ये आपका हॉट वाटर रहेगा। ओके, नीचे का वाटर आपका कोल्ड रहता है, ठीक है, कोल्ड वाटर रहता है यहां पे नीचे आपका। अब ये कह रहा है जो यूफोटिक जोन है वो एक्सटेंड करता है एप्लीम्यून में। यूफोटिक जोन आपका ऊपर का होता है, ठीक है। यूफोटिक जोन के अंदर आते हैं लिम्नेटिक और लिटोरल। यहां पे अगर आपके कोई भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो कौन सा होता है, लिटोरल। लिटोरल। और यहां पे आपका होता है लिम्नेटिक। ठीक है, तो अगर ये हमारा एक्सटेंड हो रहा है हाइपोलिम्यून के अंदर, यानी कि आपकी कोल्ड वाटर ज्यादा है, ठीक है, ये कह रहा है वहां पे हॉट वाटर कम है, ठीक है, कोल्ड वाटर ज्यादा है, क्योंकि एक्सटेंड कर रहा है हाइपोलिम्यून के। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वहां पे कोल्ड वाटर फिश है वो ज्यादा सर्वाइव कर सकती है। क्लियर है? इट ओलिगोट्रोफिक लेक्स देयरफॉर स्पॉट कोल्ड वाटर फिश। क्लियर है? पहले पता होना चाहिए लेक्स में डिफरेंट जोन्स क्या होते हैं। एप्लीम्यून होता है ऊपर, नीचे हाइपोलिम्यून होता है, ठीक है। यूफोटिक जोन के अंदर लिटोरल और लिम्नेटिक दोनों होते हैं। अब जब ये एक्सटेंड कर रहा है हाइपोलिम्यून के अंदर, ठीक है, तो ज्यादा ये स्ट्रेटिफिकेशन ज्यादा नहीं है इनके अंदर लेक्स में, तो उससे जो भी आप कोल्ड वाटर फिश है उसको सपोर्ट मिल रहा है। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, ताहोए लेक, जो कहां पे है, आपके कैलिफोर्निया नेवाडा बॉर्डर पे, विच इज इन यूएसए। क्लियर है? ओलिगोट्रोफिक लेक होती क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह की फिश को सपोर्ट कर रहा है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज डायस्ट्रॉफिक लेक्स। डायस्ट्रॉफिक लेक्स के अंदर ज्यादा हमारा ह्यूमिक सब्सटेंस ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम ह्यूमिक लेक भी बोलते हैं। ये हमारा ब्राउन होता है कलर के अंदर, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, ब्राउन है कलर के अंदर, साथ साथ इसका पीएच लो है, ठीक है, पीएच लो है। इज आल्सो नोन एज ह्यूमिक लेक्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाई अमाउंट होती है ह्यूमिक सब्सटेंस की। इट इज ब्राउन इन कलर एंड इट हैज लो पीएच ऑफ अराउंड 4 to 6। लो पीएच ऑफ अराउंड 4 to 6। अब इस लो पीएच से क्या हो रहा है कि उसके अंदर वाटर है जो एसिडिक कंटेंट ज्यादा है। एसिडिक कंटेंट ज्यादा होने की वजह से जो भी वहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम सर्वाइव कर पाती है, ठीक है। देयरफॉर इट सपोर्ट्स लिटिल बायोडाइवर्सिटी। ओके, ये थी आपकी डायस्ट्रॉफिक लेक। अब नेक्स्ट है आपकी मैरोमिक्टिक लेक। मैरोमिक्टिक लेक जो आपकी मोस्टली डीप लेक्स होती है, वहां पे सीजनली साइकिल होता है पानी, ठीक है। तो वहाँ पे जनरली हमारा वाटर क्या है, साइकिल होता रहता है। बट एक मैरोमिक्सिस एक कंडीशन होती है जहाँ पे आपकी बहुत ही कम स्ट्रेटिफिकेशन होती है, ठीक है, मतलब वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड बहुत ही कम मिक्सिंग रहती है, तो यानी ज़्यादा स्ट्रेटिफाइड रहता है पानी। ओके, बट डज नॉट मिक्स कंप्लीटली, ठीक है, मिक्स नहीं हो पा रहा है पानी, तो ज़्यादा स्ट्रेटिफाइड रह रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम कंडीशन को, मैरोमिक्सिस। अब इस लेक को जोन्स में डिवाइड करा गया है, ठीक है, 3 सेक्शंस में। फर्स्ट होता है हमारा बॉटम लेयर पे, उसको क्या बोलते हैं हम, मोनीमोल्म्यून। ओके, इसमें पानी बहुत ही कम सर्कुलेट करेगा, इट सर्कुलेट्स वेरी लिटल, और जनरली हाइपोक्सिक होता है। हाइपोक्सिक का मतलब है कि वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है। हाइपोक्सिक का मतलब हुआ जब भी आपकी ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो, ठीक है, और ये सॉल्टियर होता है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ लेक। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं, मोनिमिलियन। और टॉप पे होते हैं आपका मिक्सोलिमियन, ठीक है। और इनको 2 लेयर्स को डिवाइड कर रही है एक लेयर जिसको बोलते हैं हम कैमोक्लाइन। क्या बोलते हैं, कैमोक्लाइन, ठीक है। इसमें भी 3 लेयर्स हो गई हैं, पर ज्यादातर इसके अंदर हमारा पानी ज्यादा मिक्स नहीं हो रहा है, डज नॉट मिक्स कंप्लीटली। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो सरफेस लेयर है वहां पे तो आपके डिजोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, 10 मिलीग्राम पर लीटर और ज्यादा मिल सकती है आपकी, ठीक है। डिजोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी,
और जैसे कि मैंने बताया बॉटम लेयर पे हाइपोक्सी कंडीशन हो रही है, तो इट रिसीव्स लिटिल ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है बिग सोडा लेक। ठीक है, बिग सोडा लेक जो कहां पे है, नेवेडा में। बिग सोडा लेक विच इज नियर अ वोल्केनिक क्रेटर। ठीक है, एक वोल्केनिक क्रेटर के पास में है ये लेक। ठीक है, जो कहां पे है आपका, फेलो नेवेडा में। क्या नाम है इसका, बिग सोडा लेक। तो आपसे इस तरह क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, इन लेक्स के एग्जांपल बताइए। ओके, टेल द प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोट्रॉफिक लेक और यूट्रॉफिक लेक विच हैज द मोर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, विच लेक हैज लो पीएच कंटेंट। तो आपको मैंने डिटेल में बता दी, इससे आपको क्लियर होएगा। तो हम प्रॉपर्टीज के बाद आप ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आपसे पूछा मैच द फॉलोइंग, अब चारों लेक्स को मैच करना है आपको। अब ट्राई कीजिए इसको मैच करने की। फर्स्ट इज ओलिगोट्रॉफिक लेक्स। तो इसमें से बेस्ट कौन सा है, मैंने आपको बताया था इसका न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन सबसे कम होता है, तो लो न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन। तो ए का तो हो गया हमारा 3। ठीक है, बी पूछ रहा है डायस्ट्रॉफिक लेक। डायस्ट्रॉफिक लेक में मैंने बताया था आपका लो पीएच होता है एंड हाई ह्यूमिक एसिड कंटेंट होता है। ठीक है, तो हमें बी का मिल गया 2। मैरोमिक्टिक लेक्स, मैंने बताया था साल्ट ज्यादा होता है, परमानेंटली स्ट्रेटिफाइड रहता है, ज्यादा मिक्स नहीं हो पाता है पानी। ठीक है, तो परमानेंटली स्ट्रेटिफाइड रहता है। तो सी का हो गया हमारा 4। डी इज आस्किंग अबाउट इंपाउंडमेंट्स क्या होते हैं। इंपाउंडमेंट्स वो बनते हैं जब डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, उसकी वजह से हमारे इंपाउंडमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो डी का रहेगा 1। तो देखिए 3241 किसका है, कौन से में है, 3241 इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका करेक्ट आंसर। ओके।